Dear students, good morning. Today students will be study about power sharing in social science chapter number 1. Democratic politics. A democratic country government or political system is governed by representatives who are elected by the people. It means एक लोकतांत्रिक देश सरकार या राजनीतिक प्रणाली उन प्रतिनिधियों द्वारा शासित होती है जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। अवर माइंड मैनी क्वेश्चन व्हाट इज पावर शेयरिंग means of power sharing. Power sharing is a political arrangement in which different groups all take part in government together. It means सत्ता का हस्तांतरण एक राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न समूह सभी सरकार में हिस्सा लेते हैं। फर्स्ट टाइम स्टडी अबाउट इंटरव्यू या ओवरव्यू power sharing. With this chapter we resume the tour of democracy that we started last year. We noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government. And intelligent sharing of power sharing, legislature, executive, judiciary is very important to the design of a country. अर्थात इस अध्याय के साथ हम लोकतंत्र की उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले साल कक्षा 9 में हम शुरू कर चुके थे। पिछले साल हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग या तक सीमित नहीं होती। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर दिया जाता है जो लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। In this and the next two chapters we carry this idea of power sharing forward. We start with two stories from Belgium and Sri Lanka. Both these stories are about how democracies handle demand for power sharing. पिछले 3 अध्यायों में हम सत्ता के बंटवारे पर सोच विचार को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम बेल्जियम और श्रीलंका की 2 कथाओं के साथ शुरू करते हैं। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि विभिन्न लोकतांत्रिक शासन पद्धतियां सत्ता के बंटवारे की मांग में किस तरह निपटती हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. It has border with France, the Netherlands, Germany and Luxembourg. It has population of a little over 1 crore, about half the population of Haryana. The ethnic composition of this small country is very complex. Of the country's total population, 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. इट मीन्स बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल में ये हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं नीदरलैंड, यूक्रेन और जर्मनी से लगती हैं। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। शेष से 40% लोग वोलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। The minority French-speaking community was relatively rich and powerful. It means अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी दिखाई देती है। हमें
This was resented by the Dutch-speaking community who got the benefit of economic development and education much later. This led to tensions between the Dutch-speaking and French-speaking communities during the 1950s and 1960s. The tension between the two communities were more acute in Brussels. Brussels presented is a special problem. The Dutch-speaking people constitute a majority in the country but a minority in the capital. इसके चलते 1950 और 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रसेल्स में दिखाई दिया। ब्रसेल्स कैपिटल सिटी ऑफ द बेल्जियम। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देते थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में वे कमज़ोर और अल्पमत में थे। Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same age in Haryana. Like another nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The major social groups are the Sinhala speakers 74% and the Tamil speakers 18%. Among Tamils are two subgroups. Tamil native of the country are called Sri Lankan Tamils 13%. आइए इस स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय समूह है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है। तमिलों में भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल 13% और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत में लाए गए लोगों की संतानें हैं। चित्र में हम मैप ऑफ श्रीलंका का देख रहे हैं। श्रीलंका के मैप को देख रहे हैं। श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम में 9 स्टेट्स हैं, जो श्रीलंका की राजनीतिक और स्थिति को दर्शाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद थे। अधिकतर सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान। द रेस्ट हुज forefathers come from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhist, while most of the Tamils are Hindus or Muslims. There are about 7% Christian who are both Tamil and Sinhala. इसमें से श्रीलंका की कुल आबादी में से ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंगली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। डच कम्युनिटी could take advantage of its numeric majority and force its will on the French and German speaking population. This would push the conflict among communities further. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would
claim control over bill sales in Sri Lanka. The Sinhala community enjoy an even bigger majority and could impose its will on the entire country. Now let us look at what happened in both these countries. आज अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते थे। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ गई। इससे संभव था इससे देश बंट जाता और ब्रसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंगली आबादी का बहुमत और भी ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब हम देखें कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ और क्या क्या होने वाला है। इस श्रीलंका और बेल्जियम की स्थिति का यदि हम कंपेयर करें तो दोनों की जो कंडीशन या सिचुएशन है वो सेम दिखाई देती है, क्योंकि दोनों कंट्री नेबरिंग कंट्री हैं और दोनों की आबादी भी 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक है, जिसकी वजह से दोनों में ही देशों में विभिन्न समूहों और विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं और दोनों ही देशों के लोगों के बीच में दो कम्युनिटी के बीच में कुछ मनमुटाव दिखाई देता है। इस मनमुटाव का कारण आपसी राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है, जिसकी वजह से दोनों देश अपनी राजनीतिक स्थिति से निकलते हुए दोनों कम्युनिटी को समझाने बुझाने का काम करते हैं और एक राजनीतिक अस्थिरता से राजनीतिक स्थिरता की ओर बढ़ते हैं और देश की को विकास के रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं। इस अध्याय में हम पावर शेयरिंग का कैसे और क्यों अध्ययन करेंगे। पावर शेयरिंग किसके लिए ज़रूरी है। पावर शेयरिंग यदि पावर को एक व्यक्ति के सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में रहती है तो वह मनमाने तरीके से अपना शासन करेगा। यदि सत्ता विभिन्न समूहों ग्रुपों के हाथ में चली जाती है तो व्यक्ति अपनी इच्छा से शासन नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, अर्थात श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, अर्थात सन 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। ये राष्ट्र भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन था। द लीडर्स ऑफ द सिंगला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of ethnic their majority. As a result, the democratically elected government adopted a series of the majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. सिंगली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंगली समुदाय की प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. Thus, disregarding Tamil, the government followed preferential policy that favored Sinhala applicants for university positions and government jobs. A new constitution stipulated that the state shall protect and foster बुद्धिज्म। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंगली लोगों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। नए संविधान में ये प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअल increased the feeling of alienation
Among the Sri Lanka Tamils, they felt that none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture. They felt that the constitution and government politics denied them equal political rights, discriminated against them in getting jobs and other of opportunities, and ignored their interests. As a result, the relations एक एक करके इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंकाई तमिलों की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानापन बढ़ाया, अर्थात उनकी अनदेखी की। उन्हें लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियां उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं। उन्हें यह भी लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से भी वंचित कर सकती हैं। नौकरियों और फ़ायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते गए और दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ता गया। इस मनमुटाव ने राष्ट्र में गृह युद्ध की या सिविल वार की स्थिति पैदा कर दी, जो राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय थी। इस प्रकार एथनिक कंपोजिशन ऑफ द श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन हमें चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिनमें जो सिंगली कम्युनिटी की जो संख्या है वो 74% और तमिल कम्युनिटी की जो परसेंटेज 18% है। इनमें तमिल कम्युनिटी में भी दो ग्रुप दिखाई देते हैं, श्रीलंकाई ग्रुप और एक तमिल ग्रुप। श्रीलंकाई मूल निवासी तमिल के 13% और हिंदुस्तानी जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतानें थे। इस प्रकार इन दोनों ग्रुपों के बीच में मनमुटाव बढ़ता गया, जो श्रीलंका की राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। श्रीलंका की राजनीतिक इच्छा शक्ति ने श्रीलंका को दोनों वर्गों के बीच में मनमुटाव को ला दिया, जो संविधान के संशोधन उनके तहत किया गया। इस मनमुटाव को दूर ये मनमुटाव वहाँ की श्रीलंका की स्थिति को भी दर्शाता है। Between the Sinhala and Tamil community strand over time, the Sri Lankan Tamils launched parties and struggled for the recognition of Tamil as an official language for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs, but their demand for more autonomy to provinces populated by the Tamils was rapidly denied. By 1980, several political organizations were formed demanding independent Tamilism in northern and eastern parts of Sri Lanka. इसके बाद श्रीलंका तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाईं और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिलियम सरकार बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बने। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. As a result, thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees, and many more lost their livelihoods.
ये टकराव गृह युद्ध में परिवर्तित हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष के हजारों लोग मारे जा चुके थे। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए थे। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। You have read of economics textbook class 10th about Sri Lanka excellent record of economic development, education and health, but the civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। 10वीं कक्षा के अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पहले फर्स्ट अध्याय में कि हमारे क्षेत्र के देशों में आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई जो राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करती हैं। ये राष्ट्र का विकास अवरुद्ध होने से हमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रीलंका की छवि को दर्शाता है। लेकिन श्रीलंका का जो ह्यूमन इंडेक्स है वो हमारे देश से भी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन श्रीलंकाई जो इंटरनल सिविल वार जैसी कंडीशन दिखाई देती है वो वहाँ की पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को और भी ख़राब कर देती है। लेकिन हमारी जो सोशल, इकोनॉमिक और राजनीतिक कंडीशन है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारती है। एकमोडेशन इन बेल्जियम की समझदारी। द बेल्जियम लीडर्स टुक ए डिफरेंट पथ। They recognized the existence of the regional differences and cultural diversity between 1917 and 1993. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। It means बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में चार संशोधन के सिर्फ इस बात के लिए किए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास ना हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। The arrangement they worked out is different from the other country and is very innovative। Here are some of the elements of the Belgium मॉडल। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है तथा कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम के मॉडल की कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। विशेष जानकारी के लिए हम यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स shall be equal in the central government। Some special laws require the support of majority of members from each linguistic group। Thus no single community can make decisions unilaterally। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूहों के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबोर्डिनेट to the central government। It means
केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द या डिलीवर्ड कर दी जाएंगी, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं। ब्रसेल्स हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच both the communities have equal representation. The French-speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch-speaking community had accepted equal representation in the central गवर्नमेंट। ब्रसेल्स में अलग सरकार है